Good afternoon, everyone. Today is 26th of December, and we are back with regular newspaper analysis. I hope you had a good Christmas, and you must be in that zone of celebrating New Year, contemplating about what went good, what went wrong in last 1 year, and probably prepping for the New Year's Eve. So, एक पर्सनल सजेशन है आपके पास जो अगले 3-4 दिन है उसमें टेक अ टाइम आउट सिट विथ योर सेल्फ and write it down what was good about last year, what could have been better, the things that you had planned but could not materialize. ये सब आप लिख लेना, write it down and then start working on how you're going to make things work which could not work this year, especially in terms of studies. And अगर पढ़ाई के लिए if you need some assistance how to work out a plan for the next year or the exam you're attempting, please feel free to connect with CACP and we shall try our best to help you chalk out the plan which would help you materialize your goals in 2026. With that note, let's begin today's newspaper analysis. First, like every day, I'll give you an overview of the articles which we are going to discuss, and then we'll indulge into discussion of every article. The first article is regarding National Intelligence Grid, NAT Grid. पार्लियामेंट में ये कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसके जो 119 करोड़ लोगों का जो डेटा है दैट हैज बीन फीडेड एंड हैज बीन इंटीग्रेटेड विद NAT ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. तो इस पर्सपेक्टिव से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि NAT ग्रिड होता क्या है एंड उसमें NPR के साथ लिंक करने के बाद व्हाट आर द थ्रेट्स पॉसिबल, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग इट, उसको हम फर्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे. सेकेंड आर्टिकल जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया कि CSR will also include environmental responsibility. We shall be discussing that. Third article is from the economics that India's core sector has grown at 1.8% in November. अब वो 1.8% या 5% या 2% है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कोर सेक्टर होता क्या है. Through this article we'll quickly revise what is core sector, what are the components of that core sector. क्योंकि लास्ट टाइम जब ऐसा थोड़ा सा एबनॉर्मल ग्रोथ देखा गया था तब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द कोर सेक्टर. सो taking clue from that we'll be discussing what is core sector and the elements of it, components of it. The fourth article is editorial from the Hindu which talks about coming or urbanization के लिए what kind of a sustainable ecosystem we would be requiring, what we should be focusing upon, उसमें वो है. और जो लास्ट आर्टिकल है वो है हमारे नेबर से, मतलब बांग्लादेश से. बांग्लादेश में इतने साल एग्जाइल में रहने के बाद ओपोनेंट ऑफ शेख हसीना वो वापस आ गए. तो उनके वापस आने का बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कम्युनल हार्मनी. उसको हम सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ेंगे, इसका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, बस उसको एज अ एडिशन मटेरियल हम आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट let me inform you about the foundation batch. It shall be starting really soon and the details of which can be accessed through the contact number mentioned here. Crash course जो है वो is for those who have prepared before but not confident about the preparation and want to revise quickly all the subjects. तो उनके लिए CCP crash course लेकर आएगा. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. And इसका integral part apart from teaching is going to be 10 smart books and 15,000 MCQ का pre-fit initiative. This is the initiative I was referring to. It has 15,000 MCQ. उसमें से 3,000 प्लस जो है वो फ्री कॉस्ट है, जिसमें YouTube पे फ्री उसके बारे में डिस्कशन होगा. MCQ के एलिमिनेशन टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, उन MCQs को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा. उसी का पार्ट है, उसका सेकंड हाफ है पेड पार्ट. जिस सेक्शन को हम फ्री यूट्यूब वीडियो में 25 MCQs के थ्रू हर रोज डिस्कस करते हैं, उसी सेक्शन के एग्जैक्टली आपको टेस्ट
एप्लीकेशन में पेड कोर्स में मिल जाता है, जिसमें 120 टेस्ट है, मतलब 12,000 MCQs है. And those MCQs are very well structured, considering 4 rounds of revision, increasing intensity or the difficulty of the questions. तो उसको हम लोगों ने डिवाइड किया है इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट कैटेगरी में. एंड देन वी ऑल्सो हैव फुल लेंथ टेस्ट. तो वो उसके डिटेल्स ऐप के ऊपर अवेलेबल है, या अगर उसके डिटेल्स चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हो. ये सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, इन्फोग्राफिक्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन द application. And to download the application you will have to scan these QR codes. All right. Let's get started. The first article. So हुआ ये था कि एक considering the security purposes, making sure law and order is maintained, it is Indian state has been secured from all the perspective, एक ग्रिड को एस्टेब्लिश किया गया था. नेटवर्क, ग्रिड मतलब नेटवर्क, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. पार्लियामेंट में पूछे गए एक सवाल में गवर्नमेंट के द्वारा आंसर दिया गया कि 119 करोड़ लोग जिनका NPR अवेलेबल है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में डेटा अवेलेबल है, ऑल ऑफ इट हैज बीन फीड इनटू नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. ये न्यूज है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, टू अंडरस्टैंड कि नेट ग्रिड है क्या. सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो जाता है तो सिक्योरिटी के पर्पज से शायद इसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स है, बट आर देयर एनी नेगेटिव इन्वॉल्व, आर देयर एनी पोटेंशियल थ्रेट इन्वॉल्व. तो उनको हम आज इस आर्टिकल के थ्रू देखेंगे. या फिर GS2, GS4, हर जगह पे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. नेट ग्रिड जो है ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, एंड इट वाज क्रिएटेड टू एनेबल ऑथोरिटीज एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू एक्सेस इंटीग्रेटेड डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटाबेसेस. मतलब क्रिमिनल का या अलग अलग डेटा जो होता है इंफॉर्मेशन का, वो हर स्टेट का अपना अपना मेंटेन होता है. कई जगह पे हर डिस्ट्रिक्ट का, हर पुलिस स्टेशन का अलग मेंटेन होता है. तो ऐसा पॉसिबल है कि उड़ीसा में किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी जगह पर एक इंसिडेंट हुआ है और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उस क्रिमिनल की इन्फॉर्मेशन तमिलनाडु के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी पुलिस स्टेशन में अवेलेबल है. तो पहले ये होता था कि दे हैड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि इसका इन्फॉर्मेशन किस पुलिस स्टेशन में मिल सकता है. फिर डिफरेंट चैनल से उस पुलिस स्टेशन तक पहुंचिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए. क्या पता वो इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड हो, पुरानी हो, शायद वहां पे हो भी ना. तो इट यूज्ड टू टेक लाइक लॉन्गर पीरियड, लाइक मंथ्स, कभी कभी साल भी लग सकते थे. बट नेट ग्रिड से हुआ ये कि whenever any police station has any information that will be feed up in net grid, national intelligence grid. तो anywhere in the country any agency can access, any agency मतलब जिनको अथॉरिटी दी गई है वो डेटा अबाउट अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो पहले बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, वो अब इमीडिएटली आपको मिल जाता है. ये आप और मैं कर सकते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ वो एजेंसीज कर सकती है जिनको अथॉरिटी दी गई है नेट ग्रिड को, नेट ग्रिड से डेटा एक्सेस करने के. ये जो नेट ग्रिड है वो अपने आप खुद डेटा कलेक्ट नहीं करता. मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें जिसके डिटेल्स है वो अगर कहीं फोन पे भी बात कर रहा तो उस फोन के डिटेल्स उनके पास चलेंगे. नो, ये नेट ग्रिड में डेटा अपलोड करना पड़ता है. मतलब जो कंसर्न एजेंसीज है, कंसर्न पर्सन है, लेट्स से कोई पुलिस स्टेशन है, तो वहां पे किसी को बाय हैंड करना पड़ेगा. तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट अंडर द सर्वेलेंस, राइट. सो ये इंपॉर्टेंट है कि इट डज नॉट collect data on its own, but it functions as a back end data. That means it gives the access architecture linking existing databases such as, इसमें अब जो नया है उसमें इमिग्रेशन भी है, बैंकिंग, टेलीकॉम एंड नाउ पॉपुलेशन रिकॉर्ड भी अब आ गया. इसके पहले सिर्फ बाकी के डिटेल्स है, अब NPR के थ्रू पॉपुलेशन की डिटेल्स भी नेट ग्रिड में शामिल हो गए. इसका जो ऑब्जेक्टिव था नेट ग्रिड को लाने के पीछे का, it was stated that it is needed to strengthen the counter terrorism, international security, internal security and organized crime prevention through timely information access. जितने जल्दी इंफॉर्मेशन को एक्सेस मिलता है उतने जल्दी एक्शनेबल इनपुट्स
एजेंसी के पास आते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए और उतने जल्दी एक्शन लिया जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाई NAT ग्रिड इज ऑफ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब डेटा लिंक कर दिया एनपीआर का, तो इससे क्या कंसर्न्स रेज हो रहा है? फर्स्ट, द 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी ऑफ अ डेटा, है ना, डेटा इज गोइंग टू बी न्यू ऑयल। तो यहाँ पे जो रिस्क डेटा एग्रीगेशन के साथ एसोसिएटेड है, कहीं का भी डेटा हो, मेटा डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक जगह पे गैदर हो जाती है तो उसका मिसयूज होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को मिसयूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, गैदर्ड इंफॉर्मेशन को एक जगह पे सारा अगर अवेलेबल है तो इट कैन बी मिसयूज। सो द डेटा एग्रीगेशन रिस्क जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बिकॉज इट डेटाबेस का जो इंक्रीज स्केल एंड सेंसिटिविटी है इज एक्चुअली हेल्ड बाय द स्टेट, और इसलिए मिसयूज या ब्रीच होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। सेकंड जो है वो है पर्पस लिमिटेशन एंड कंसेंट। मतलब जो इंटेलिजेंस एक्सेस टू पॉपुलेशन डेटा है, इट रेजेस क्वेश्चन ऑन वेदर द डेटा कलेक्टेड फॉर सिविल पर्पसेस, जो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कितने दिन किसी जगह पे रहा था, या मेरा राशन कार्ड कहाँ का है, ये सिविल पर्पसेस से बना हुआ डेटा है। इस सिविल पर्पसेस से कलेक्टेड जो डेटा है, has it been repurposed beyond its original mandate, जिसलिए वो लिया गया था, क्या उसके आगे जाकर उसका यूज हो रहा है? थर्ड इज देयर इज एन ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी गैप। मतलब डेटा तो हो गया, NAT ग्रिड बन गया, वहां पे डेटा फीड भी हो गया, उसका यूज करने वाले जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी का भी तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना। लेट्स से कोई NAT ग्रिड को एक्सेस होने वाला कोई सीनियर ऑफिसर है, उसने किसी पर्सनल यूसेज के लिए कोई डेटा यूज कर लिया किसी का, या मिसयूज कर लिया, तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। उन्होंने कुछ गलत किया तो उसके ऊपर गलत हुआ है ये देखने के लिए एक ओवरसाइट भी तो होना चाहिए। उस ओवरसाइट की अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म में कुछ गैप्स है, दोज आर नॉट क्लियर येट। स्पेशली अगर इंटर एजेंसी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी डेटा को एक्सेस कर रहा है, उसी डेटा को अगर RNW एक्सेस कर रहा है, या मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सेस कर रहा है, या किसी स्टेट पुलिस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो एक्सेस कर रहा है, तो मल्टीपल एजेंसीज के मल्टीपल अपने फ्रंट्स है, मल्टीपल टर्फ्स है, उन टर्फ के बीच में अगर दिक्कत आता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं है, तो बीच में गैप है, उसमें अगर किसी ने मिसयूज कर लिया तो उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ओवरसाइट मैकेनिज्म के बारे में डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है। मोर ओवर वी ऑल्सो नीड सेफगार्ड्स रिगार्डिंग द प्राइवेसी, क्योंकि ऑपरेशनल क्लैरिटी जो है इट इज अ मस्ट, क्योंकि unless they know the purpose, unless we have the clear idea about the purpose of utility of such data, it would be acceptable for people to be apprehensive about their data privacy, right? All right, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अब सॉल्व करते हैं MCQ। लिंकिंग इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म विथ पॉपुलेशन डेटाबेस primarily raises which concern? Does it raise concern of reduced efficiency of security agency? Does it concern violation of purpose limitation and privacy risks, duplication of demographic data, or increased cost of data storage? Please pause the video and try and answer this question. So the correct answer is B. Linking intelligence platform with population database primarily raises the concern of violation of purpose limitation and of a privacy risk. इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो PDF में आपको मिल जाएंगे, वो आपके ऊपर अवेलेबल है। The next article is Supreme Court has mentioned that CSR जो होता है, corporate social responsibility, includes environmental responsibility as well. अब CSR क्या है ना, इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये आर्टिकल में नहीं दिया, बट थ्रू आर्टिकल वी विल ट्राई एंड रिकॉल इट। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द आइडिया इज कि कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रॉफिट कंपनी लेती है, लेकिन रिस्क सोसाइटी बेयर करती है। तो उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा
रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉर्पोरेशन का टुवर्ड सोसाइटी, थोड़ा सा वेलफेयर एटीट्यूड लाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में इस सीएसआर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू ये लाया गया। और ये स्टार्ट हुआ अप्रैल 2014 से, अप्रैल 2014 से इट स्टार्टेड। इस एक्ट के अंदर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज है, उनको पिछले 3 साल में जो उनका प्रॉफिट रहा है, उस सिर्फ प्रॉफिट के, टोटल रेवेन्यू के नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का 2% शेयर जो होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शेयर करना होता है, उनको स्पेंड करना होता है। वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर चीजें लाइक डिसेबल्ड लोगों को हेल्प कर सकते हैं, या जो भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसे चीजों में देना एक्सपेक्टेड है। 2% ऑफ देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ये जो बड़े कॉर्पोरेट्स है उसके कुछ कंडीशंस है, जैसे कि 500 करोड़ प्लस उनका रेवेन्यू होना चाहिए, नेटवर्थ होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उसका 2% वो देता है। वो कहां से आया है? कंपनीज एक्ट 2013 से, ये इंस्टीट्यूशनलाइज है। इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंस्टीट्यूशनलाइज द आइडिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हैज मेंशन्ड कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो पार्ट ऑफ इट। क्यों? बिकॉज कंसर्न इसमें क्या है ना कि कॉर्पोरेट्स के लिए ये 2% स्पेंड करना एक फॉर्मेलिटी बन गया है, कि मतलब कुछ नहीं तो चलो किसी अनाथ आश्रम में अपने लोगों को भेज दिया, कुछ खाना खिला दिया, इस तरीके का। मतलब दे मेक इट अ पॉइंट दैट इट अपीयर्स लाइक अ चैरिटी एंड नॉट एज अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, है ना। मतलब किसी के ऊपर दान करने जैसा, चैरिटी करने जैसा वो बिहेव करते हैं, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम। इंस्टेड ऑफ दैट दान करना, चैरिटी वाला एटीट्यूड, they need to have responsible institutional behavioral attitude, right? So the core concern इसमें जो कंपनीज नैरोली इंटरप्रेट करती है CSR को, वो because of that corporates often treat CSR as a post profit charity exercise, ignoring the environmental negative externalities that may have been caused by the functions of the organization. Second is second core issue is environmental harm versus compensation. सिर्फ कॉम्पेंसेशन दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि एनवायरमेंट, ये तो ऐसा हो गया कि किसी एक्सीडेंट में किसी के घर वालों की डेथ हो गई, किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, और उनको गवर्नमेंट ने बोला कि 5 लाख रुपए, आप जो मर गए उनके लिए 5-5 लाख रुपए, जो इंजर्ड हो गए उनके लिए 1-1 लाख रुपया। जो इंसान चला गया उसके जगह पे 5 लाख रुपए का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दे दिया, इसका मतलब ये है क्या कि अब हाथ खड़े कर लिया, राइट? मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू द लॉस इट हैज कॉस्ट, राइट? सिमिलरली एनवायरमेंटल कंसर्न्स में दे इक्वेट कॉम्पेंसेशन विथ एनवायरमेंटल हार्म। उनको लगता है कि जितना कर दिया उतना पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। नो, मॉनेटरी CSR स्पेंडिंग जो है, इट कैनॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर इकोलॉजिकल डैमेज दे हैव कॉस्ट। दे हैव टू inculcate that monetary support into institutionalized mechanism, जहां पे environmental harm रिकवर करे, वहां फिर से वही एनवायरमेंट जैसा पहला था वैसा फिर से एस्टैब्लिश हो। थर्ड कंसर्न ये है कि कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी जो है, स्पेशली इन द केस ऑफ CSR, ये बहुत वीक है। बेसिकली जो एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग अवेलेबल नहीं है। फिर रेगुलेटरी और जुडिशियल गैप भी है, मतलब जहां पे कोर्ट्स का कोई काम नहीं है वहां पे भी कोर्ट्स को स्टेप इन करना पड़ रहा है, उनको एडवाइस देने पड़ रहे हैं, उनको डायरेक्शन देने पड़ रहे, डायरेक्टिव्स देने पड़ रहे कॉर्पोरेशंस को, क्योंकि कॉर्पोरेशंस का उनका खुद का कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ दैट रेगुलेटरी बॉडी, कोर्ट गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेप इन इनटू द डोमेन व्हिच शुड आइडियली बी हैंडल्ड बाय द कॉर्पोरेट्स देमसेल्व्स, है ना। तो ये हमारे पर्सपेक्टिव से सिर्फ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में नहीं है।
ये MCQ है. The Supreme Court's interpretation of CSR primarily emphasize which principle? First, voluntary philanthropy by corporations. B, profit maximization with post facto compensation. Integration of environmental responsibility into core business activities, or transfer of environmental regulation to private sector. Try and solve this by pausing the video. The answer correct is C. It is the idea that they want to include environmentally responsible behavior to the core functioning of corporate governance. Third article is regarding India's core sector performance. Core sector जो है, the name itself suggests it's a core, it's the आत्मा of industrial development. ये वो सेक्टर होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या बाकी का जो इकोनॉमिक सेटअप है उसको बैकबोन प्रोवाइड करता है. इट्स द स्ट्रेंथ गैदर्ड बाय द इकोनॉमी, और इस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मतलब एक इंडेक्स होता है, उस IIP कहते हैं उसको. उस IIP में सबसे ज्यादा वेटेज जो आता है वो कोर सेक्टर से आता है. तो इस आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि कोर सेक्टर में आता क्या क्या है, वही सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. और दूसरा कि इस आर्टिकल में कुछ कोर कंसर्न्स रेज किए, वो कोर कंसर्न्स हम मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कोर सेक्टर होता क्या है और उसमें कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व है. ठीक है. सो न्यूज ये है कि अब नवंबर में 1.8% से उसकी ग्रोथ हुई है. 1.8% इज relatively less in terms of growth rate. It should be 2.53%. ये अच्छा माना जाता है, but 1.8 थोड़ा कम है. तो विल क्विकली रिवाइज कोर सेक्टर होता क्या है. कोर सेक्टर जो है इट रेफर्स टू दी 8 key infrastructure industries that have a high weight in the IIP, that is Index of Industrial Production. ये जो 8 इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स है, दे आर क्रिटिकल बिकॉज दे सप्लाई इनपुट्स टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. जब इन 8 सेक्टर्स को आप सुनोगे ये कौन से, यू विल रियलाइज कि ये क्यों आत्मा है. पहला है कोल, थर्मोन्यूक्लियर पावर जो है हमारा, थर्मल पावर जो है, उसमें कोल के अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे तो इमेजिन नहीं कर सकते हो. सेकेंड इज क्रूड ऑयल, एनर्जी सप्लाई. थर्ड इज नेचुरल गैस. फोर्थ इज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. फिफ्थ इज फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर का बैकबोन. स्टील, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का बैकबोन. सीमेंट, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन. एंड इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी का बैकबोन. ये 8 सब सेक्टर जो है, दीज फॉर्म द पार्ट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज. इसके ऊपर जब MCQ पूछा गया था तो इट वाज आस्क्ड व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कोर इंडस्ट्रीज. तो आपको ये 8 जो है इनको बस फेमिलियराइज होकर रखना है. जब आप MCQ सॉल्व करते हो, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, देन यू गेट मोर फेमिलियर विद दीज 8 सेक्टर्स एंड इवेंचुअली इट स्टेज विथ यू. इसमें कोर कंसर्न्स, कोर इश्यूज क्या है. फर्स्ट, आर्टिकल ये कह रहा है कि जो ग्रोथ सेक्टर, ये जो कोर सेक्टर है, इसमें जो स्लोअर ग्रोथ जो है, इट इज सिग्नलिंग कि अगर कोर सेक्टर ही स्लोली ग्रो कर रहा है, मतलब लार्जर इकोनॉमी में डिमांड थोड़ा सा लो है, राइट. सेकंड कंसर्न इसने जो किया है कि सेक्टोरल डाइवर्जेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सेक्टर्स ही स्लो ग्रो कर रहे हैं. कोल हो, स्टील हो, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, हर सेक्टर अलग अलग ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है. विच ऑल्सो इम्प्लाइज कि प्रॉब्लम बॉटलनेक्स में, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, कुछ सेक्टर के कुछ बॉटलनेक्स है, जो कुछ डिफिकल्टीज है, हिंडरेंस है, इसकी वजह से ग्रोथ रुका हुआ है, एंड नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन. थर्ड इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पिल ओवर रिस्क, मीनिंग अगर ये कोर सेक्टर का जो लो परफॉर्मेंस है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अगर कॉन्सेक्यूटिव 5-6 महीने ऐसे ही 1.8 1.5 के आसपास रहा, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है उन पर भी होगा, और वो स्पिल ओवर इफेक्ट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. लास्ट वन इज द पॉलिसी ट्रांसमिशन चैलेंजेस, मीनिंग
गवर्नमेंट अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होने वाला जो स्पेंडिंग है, अगर वो बढ़ाया भी लेकिन वीक इंडस्ट्रियल डिमांड रहा, वीक प्राइवेट सेक्टर परफॉर्मेंस रहा, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं पाएगा. सो दैट इज वाई ये कोर सेक्टर का 1.8 ग्रोथ रेट से ग्रो करना अभी ठीक है, लेकिन अब ये इसको प्रोलॉन्ग नहीं हो सकता. वी विल हैव टू ग्रो इट फास्टर, we will have to grow with a faster rate in upcoming future. Please attempt the following MCQ. You can pause the video. The index of core industries ICI is important because it directly measures inflation in industrial commodities, serve as a leading indicator of overall industrial performance, reflects employment generation in manufacturing, determines fiscal deficit targets. The correct answer would be obviously B. It serves as a leading indicator of overall industrial performance. डिटेल जो है वो आप पीपीटी या पीडीएफ से एक्सेस कर सकते हो. The fourth article is regarding urban future with cities as dynamic ecosystems. इस आर्टिकल में we will see that जो फ्यूचर है अर्बनाइजेशन का, ये आर्टिकल एक्चुअली एडिटोरियल है द हिंदू का. इसमें इस ओपिनियन पेज पर ये आर्ग्यू किया गया है कि जो फ्यूचर सिटीज होगी, फ्यूचर अर्बनाइजेशन होगा, उसको बिल्ड करने की जो इकोसिस्टम होगी, इट हैज टू बी डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब क्या होगा? डायनेमिक के ऑपोजिट कौन सा सिस्टम होगा? स्टैटिक, जिसमें ये प्रिजम्पशन होता है कि इसी तरीके से ग्रो करेगा, इतना ही ग्रो करेगा. डायनेमिक इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसमें सिर्फ एक सेक्टर का सोचा नहीं जाएगा, अलग अलग सेक्टर्स को एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंसी के साथ सोचा जाएगा, और जो फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं उसको इंक्लूड करने के लिए फ्लेक्सिबल प्लानिंग रखी जाएगी. जो इंडियन सिटीज है, द ओपिनियन आर्ग्यूज द इंडियन सिटीज जो है, दे शुड बी प्लान्ड एंड गवर्न्ड as dynamic ecosystem where environmental processes, social systems and economic activities are interlinked rather than as a static infrastructure projects. अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अब देखिए कंसर्न्स क्या यूज रेस किया उन्होंने. फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेड अर्बन प्लानिंग. अब तक कैसा होता है कि सेक्टर वाइज अर्बनाइजेशन का प्लानिंग होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्शन जो है वो अपने अलग तरीके से सेक्टर में प्लानिंग करेगा अगले 30 साल के लिए, हाउसिंग अलग तरीके से करेगा, वाटर अलग तरीके से करेगा, और ये इग्नोर कर देता है सेक्टरल प्लानिंग इंटरडिपेंडेंसीज को, लीडिंग टू कंजेशन, फ्लडिंग एंड पोल्यूशन. एग्जांपल के लिए देख लेते हैं जो गुड़गांव है, न्यू दिल्ली एनसीआर का रीजन. गुड़गांव में अगर आप जाओगे तो बहुत चकाचौंध है, बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग, बहुत अर्बनाइज्ड है. लेकिन एक बारिश आने दो, people living in Gurgaon they regret why we are staying in Gurgaon. पूरा फ्लड जम जाता है, सारे ओवरब्रिज के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाता है, नीचे हो जाता है. वो क्यों पता है? क्योंकि गुड़गांव का जो डेवलपमेंट हुआ, लैंड डेवलपमेंट या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो ऊपर वाला, मतलब रोड्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये आइसोलेशन में हुआ, उसके ऊपर सबने फोकस किया. लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो गटर का पानी है, जो बारिश का बह जाने वाला पानी है, वो मतलब जो ड्रेनेज पैटर्न है, ड्रेनेज सिस्टम है, सैनिटेशन सिस्टम है, वो अभी भी 1980 का है, और सिटी जो है वो 2050 में चली गई है. इतना बड़ा गैप है क्योंकि लोगों जो डेवलपर थे उन्होंने सिर्फ ऊपर ध्यान दिया, जमीन के नीचे जो ड्रेनेज या सुवेज सिस्टम होना चाहिए उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. वाटर कहाँ जाए इसका कोई ध्यान ही नहीं दिया. तो अगर ये एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरडिपेंडेंसी को समझते हुए अगर प्लानिंग करते तो गुड़गांव की आज हालत खराब नहीं होती. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है. सेकंड, जब अर्बन प्लानिंग हो रहा है तो सिर्फ अर्बन पर्सपेक्टिव से ही देखा जा रहा है, इकोलॉजी को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर रहा है. मतलब जब हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है तो आसपास की जो इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है, वहां से जो इकोसिस्टम बेनिफिट्स है वो कोलैप्स कर जाता है, जो नेचुरल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है. जैसे कि वेटलैंड हुआ, लेक्स हुए, रिवर हुआ, रिवर चैनल हुआ, ये सब कोलैप्स कर जाता है. थर्ड इज गवर्नेंस साइलोस. मतलब एक ही चीज को गवर्न करने के लिए मल्टीपल एजेंसीज है.
वेस्ट मैनेजमेंट का एजेंसी अलग है, सुवेज क्लीनिंग का एजेंसी अलग है, वाटर मैनेजमेंट का एजेंसी अलग है, रोड कंस्ट्रक्शन का एजेंसी अलग है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का अलग है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का एजेंसी अलग है। ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करता है, दे वर्क इन देयर साइलोज। और इसके वजह से आप कभी देखोगे कि कल रास्ता बना था आज खुद गया क्योंकि वहां से टेलीकम्युनिकेशन की लाइन जानी थी, कल रास्ता बना था आज खुद गया क्योंकि वहां से ड्रेनेज साफ करना था। ये लैक ऑफ इंटरडिपेंडेंसी जो है ना, मतलब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वर्किंग इन साइलोस, दैट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड गवर्नेंस साइलोस। एंड द लास्ट वन इज क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करते हुए अगले 50 साल का प्लान करना जरूरी है, दैट इज व्हाट इज एब्सेंट। Please pause the video and try and attempt this MCQ. Treating cities as a dynamic ecosystem mainly implies as prioritizing real estate-led urban expansion, viewing urban areas as isolated economic units, integrating natural systems into urban planning and governance, and shifting all urban planning powers to the union government. The correct answer would be C. Integrating natural systems into urban planning and governance. ठीक है, here is a last article. ये आर्टिकल हमारे एग्जाम पे पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. We would be highlighting only the idea कि नेशनलिस्ट पार्टी जो है बांग्लादेश के, उसके सीनियर लीडर हैज रिटन टू Bangladesh after seeking asylum in foreign countries for almost 2 to 3 decades. इसको सिर्फ हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप के हार्मनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में काफी डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है. स्टूडेंट लीडर को ही वाज शॉट डेड, फिर एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के यंग लोगों को जिंदा जला रही है, मार रही है, वायलेंस हो रहा है, मेजोरिटेरियन कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को थ्रेटन कर रही है. तो इस कंटेक्स्ट में जब वो नेक्स्ट ईयर फरवरी 2026 में जब इलेक्शंस होने हैं, उसका रेफरेंडम जब होना है, तो उस रेफरेंडम में उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर जो वापस आए हैं, ऑन लैंडिंग ही हैज गिवन अ क्लियर मैसेज कि कम्युनल हार्मनी मेंटेन करना बहुत नेसेसरी है. मतलब बांग्लादेश सेक्युलर है तो उसको सेक्युलर ही रखना है. हिंदूज, क्रिश्चियन, सिख, जो अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी बांग्लादेश में, दे शुड feel secured, they should feel comfortable. ये assurance, ये words of intent जो है वो इन बांग्लादेश के लीडर ने दिया हुआ है. अभी के लिए इससे ज्यादा हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, ये MCQ है. try and attempt it. Political instability in India's neighborhood such as in Bangladesh matters for India primarily because it can lead to first, decline in India's cultural influence, increased regional economic integration, security and migration related spillover effects, and automatic interventions by international organization. The correct answer would be C. वहां पे इंस्टेबिलिटी हुई तो बॉर्डर क्रॉस करके वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, ऐसे जगहों पर इलीगली इमिग्रेशन कर लेता है ना. तो इसको रोकना है. यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को रेज होने से रोकने के लिए वी नीड अ स्टेबल बांग्लादेश. ऑलराइट, दीज आर स्मार्ट बुक्स, 17 स्मार्ट बुक नाउ अवेलेबल इन असमिस स्क्रिप्ट एज वेल. उसमें 10 प्रीलिम स्पेसिफिक है, 7 मेन स्पेसिफिक है. यू कैन एक्सेस दीज बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन दिस नंबर मेंशन हियर. प्रीफिट इनिशिएटिव का यूट्यूब लाइव जो है वो 5:30 बजे शुरू होगा. आई विल सी यू देयर. आज का टॉपिक जो है वो एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. अभी हम लोग इजी सेक्शन में ही है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आपका कुछ वैल्यूएबल फीडबैक होगा, सो प्लीज लेट अस नो. विल ट्राई एंड इंक्लूड इट, विल ट्राई एंड मेक इट इवन बेटर. थैंक यू. हैव अ गुड डे.